pioneer, Comcoast, who established the Sahel Welfare Organization, that was late Vice Admiral Arifullah Hussaini. I would request a round of applause for him. Since our inception in 2014, we have remained steadfast in our commitment to uplifting the forgotten, empowering the powerless, and serving as a beacon of hope along Pakistan's vast coastline. It is a ray of hope in the life of a child longing for education, a lifeline for struggling family, a promise to the community that they are not forgotten. As I conclude, I extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for your unwavering support, your invaluable contributions, and your belief in the mission of Sahel Welfare Organization. Projects flourishing, we have seen the projects completing, and we have seen the things reaching to the conclusion in a very short span of time. And obviously through the donation which is put through the donors, the banks which we associate us with us, and the organizations which are running parallel and doing the welfare jobs. So once again, I thank you all for your kind presence, and may Allah subhanahu wa ta'ala guide and bless us in our efforts to serve with kindness and uphold humanity. I also thank the chief guest and the worthy seniors who are sitting here for being present here. Thank you very much. I also welcome the Brigadier Rasadullah. Sahab, thank you so much from ISPR. वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और ISPR के हवाले से ब्रिगेडियर असद साहब अपनी ज़बरदस्त खिदमत पेश करते हैं, अंजाम दे रखे हैं। आपने ना सिर्फ रोटरी इंटरनेशनल में एज ए गवर्नर की हैसियत से भी सर्व किया और मुख्तलिफ हवालों से आपकी बेहतरीन खिदमत हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर फरहान ईसा साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। और ज़ाहिर है आप उन जगहों पे जाना चाहते हैं जहाँ पे कोई नहीं जा रहा, और जहाँ पे कोई नहीं जा रहा वो कोई वजह होती है कि वहाँ पे वो जा नहीं पाते। ब्रिगेडियर तारिक क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, तो नेवी के पास वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के हों, चाहे ले जाने के हों। सबसे ज़्यादा हमारा काम शुरू हुआ जिस वक्त कोविड आया था, और सर क्रीक में डेफिनेटली दानिश और जाहिद और ये सब लीड कर रहे थे, रज़ा, और हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, राशन डिस्ट्रीब्यूशन। वो छिन रही थी, आधे रास्ते में ही छिन जाती थी और लोग टेल एंड तक जा ही नहीं सकते थे। लेकिन नेवी की वजह से इतना ऑर्गेनाइज्ड हुआ कि हर एक को राशन मिला और हर एक को सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेंस हो सकी, और यकीन माने कि हमें खुद इत्मीनान हुआ कि हर चीज़ जो है वो आखिर तक पहुंच रही थी। अपनी ज़बरदस्त खिदमत पेश करते हैं। साथ ही साथ AVM इमरान माजिद साहब के भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे कराची एयर के हवाले से और उस प्रोजेक्ट के हवाले से भी माशाल्लाह वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर अभिषेक साहब रेस्क्यू 112 के हवाले से, डॉक्टर साहब की बड़ी ज़बरदस्त खिदमत हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। There is no way you can build enough schools or have enough teachers without using technology. So in my case, fortunately, I was able to find a partner as a very good friend of Farhan's. Imran Saeed teaches at MIT, and the two of us founded Teach the World. And today we have 150 schools that we have opened, primarily in places where there are no schools. These are in Kachi Abadis that have had no schools for 30 years and no possibility of schools because these Kachi Abadis are often not even legal. So the government can't even build a road or a school there. So, alhamdulillah, 150 schools at this point, 125 of them only in the last 18 months. We think we have to do this. सभी ने जो है, जो पूरी टीम है, वो चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजेस करें ताकि उनसे हम प्रोक्योर कर रहे होते हैं। आई डोंट नो इफ़ अ लॉट ऑफ यू पीपल नो कि जो फिशर फोक्स होते हैं वो 4 महीने के लिए दे कैन नॉट गो फिशिंग, उनका स्टारवेशन पीरियड होता है वो जो है, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो जब वो स्टारवेशन पीरियड चल रहा होता है तो ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड उनके पास कुछ नहीं होता है, तो वो अल्टीमेटली एक एक्सट्रीम मेजर ये लेते हैं कि उस जब ब्रीडिंग पीरियड चल रहा होता है उस टाइम भी वो जाके फिशिंग शुरू कर देते हैं और आपका जो सीड फिश है वो उसको कैच कर लेते हैं। तो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए WWF न
नर्सरीज जो है वो मैंग्रोव्स की सेटअप करके देता है फिशर फोक को, स्पेसिफिकली टू फिशर फोक वुमेन। उनकी जो वुमेन हैं उनको हम सीड प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो उस सीड से सैपलिंग निकालती हैं, और जब वो सैपलिंग तैयार हो जाता है तो वो फिर हम उनसे ख़रीद लेते हैं और फिर उसे हम प्लांट करते हैं। हज़रत कहते हैं कि सीन इज़ बिलीविंग, इंसान जो देखता है फिर उस पर यकीन करता है, और यकीनन जिसकी सरपरस्ती पाकिस्तान ने भी करी हो तो वो इदारे कितने वेरियस स्कूल्स में साइंस लैब और कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड किया गया है। ग्वादर में टेक्स्ट बुक की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। तकरीबन 2700 बच्चे जो कि जिनके पास जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनके लिए फ्री यूनिफॉर्म्स, बुक और स्टेशनरी और इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, जिसमें तकरीबन 37 मिलियन का खर्चा हुआ। औरतें जो कि एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती वहाँ, उनके लिए तकरीबन 15 मिलियन का बजट पास किया गया ताकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेजुएशन कर सकें ग्वादर यूनिवर्सिटी से। हमारे फिशरमैन को ट्रेनिंग कोर्स कराए गए हैं जिसमें लाइफ जैकेट का इस्तेमाल, कम्युनिकेशन इन सी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। समर कैंप मुनक्कद किया गया तकरीबन 100 बच्चों का। वहाँ बड़ी नेगेटिविटी है, तो बच्चों को इन समर कैंप में उनकी पर्सनल ग्रूमिंग, पॉजिटिविटी के बारे में समझाया गया। ग्वादर और पसनी में कुछ औरतों को मिडवाइफ ट्रेनिंग कराई गई। कोई 10 घर बनाए गए ग्वादर में। तो अगर इस सब को सम अप करें तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन सो फार साहिल हैज डन इज दीज नंबर्स। इस तरह इस साहिल पट्टी में अगर आप देखें तो 85% लोग तकरीबन पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ये लोग भी पाकिस्तानी हैं। दे ऑल्सो डिज़र्व समथिंग फ्रॉम अस। तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने ज़कात खैरात में साहिल को भी याद रखें और इसको भी अपना हिस्सा बनाएं। थैंक यू। जाहिद अमीर साहब आपने बड़ी डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन दी। मेरी रिक्वेस्ट है कि जाहिद साहब ने इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन बनाई, आइए एक मरतबा पुरज़ोर तालियां बजाते हैं ताकि आइंदा भी वो इसी तरीके से ज़बरदस्त अंदाज में अपनी प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। करूँगा हमारे चीफ होस्ट एडमिरल साहब से कि बराए मेहरबानी हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर अमजद साकिब साहब को लेकर यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ ताकि उनके दरमियान हम ये कुछ अवार्ड्स और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब को सुनेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुरज़ोर तालियां होनी चाहिए चीफ होस्ट एंड चीफ गेस्ट के लिए। Now I also request Mr. Danish Aman sir please हमें स्टेज पे ज्वाइन करें। सर अंजाम दी और आज हम सब इनके बड़े मोतिकत हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब। तशरीफ लाएं सर। सब मीर को देते हैं जगह आंखों पे अपनी, इस खाके रहे इश्क का एजाज तो देखो। तो हम जैसे लोग जो हैं ये इश्क की राहों के मुसाफिर हैं। खुदा से इश्क, उसके बंदों से इश्क, तो ये उसी का शाखसाना है कि इनकी नज़र इंतखाब मुझ पर गई और मुझे इस इज़्ज़त का मुस्तहिक
गर्दाना गया। तो ऐसा क्यों है कि चंद लोगों ने इस दौलत को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया? क्या हम फरामोश कर गए कि एक रोज़ हमें उस हस्ती के रूबरू पेश होना है जिसने ये सब कुछ हमें दिया? मैंने अपने अभी बोर्ड से मशवरा नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा इख्तियार मुझे हासिल है अपने दोस्तों की तरफ से। 1 करोड़ रुपए की डोनेशन हम देंगे। शर्त यह है कि 1 करोड़ रुपए आज की इस नशिस्त में आप लोगों की तरफ से जमा होने चाहिए। हम आपके साथ मैच करेंगे। अगर आप 2 करोड़ करेंगे तो हम भी 2 करोड़ पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे करके साहली पट्टी में उस दफ्तर को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करेंगे। नेकी के काम में तरगीब तो ज़रूरी है ना। हम एक कम्पेटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं, एक मार्केट इकोनॉमी में रहते हैं, हम मार्केट शेयर में अपना हिस्सा चाहते हैं। तो नेकी भी तो एक ऐसा ही खेल है कि इसमें भी तो तरगीब दी जाती है, इसमें भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और नेकी इसलिए नहीं की जाती कि नेकी के नतीजे में अजर मिलेगा। नेकी इसलिए की जाती है कि इसका हुक्म दिया गया है। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी अबूदियत का इम्तिहान है, ये हमारी इंसानियत की पहचान है। Thank you so much. Thank you so much, डॉक्टर साहब। होल थैंक यू सो मच। मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब की इतनी इम्प्रेसिव और इतनी मोटिवेशनल स्पीच के बाद एक मरतबा पुरजोर तालियां होनी चाहिए कि जिन्होंने वाकई में जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब के दिलों को मौम किया और ये ज़रूर बताया। और बिल्कुल सही करेंगे और साथ ही साथ आपको कैसे प्लेजेस देने हैं वो भी अनाउंस करेंगे। दानिश अमान साहब प्लेजेस पे चलते हैं। डॉक्टर तला थानवी साहब किंग्स बिल्डर्स के डॉक्टर तला थानवी। अस्सलाम वालेकुम। दानिश को हम सब जानते हैं, कई सालों से जो नेक अमल हर जगह करने की कोशिशों में सबके साथ इन्वॉल्व रहते हैं और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको हम सब लोगों के साथ जोड़ने की हर वक्त ये कोशिश करते रहते हैं। इस उम्र में इस तरह की सोच रखना, ऐसी नीयत रखना हर किसी के दिल में नहीं होता। हम सब कारोबार में पैसे कमाने में लगे रहते हैं और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दानिश को, इनके ख़ानदान को, इनकी फैमिली को इन तमाम नेक कामों की वजह से बेशुमार नवाजिशात ज़िंदगी में अता करें और औलादों की खुशियाँ देखना नसीब करें। थैंक यू वेरी मच भाई। उसके बाद जी एस आमिर अली साहब की तरफ से 5 लाख रुपए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी नदीम शेख साहब की तरफ से 1 लाख रुपए। थैंक यू। साथ के साथ आप बात भी करते रहेंगे कुछ लोगों से ताकि ये प्लेज का सिलसिला चलता रहे। और इस 500 राशन की अगर मैं अमाउंट लगाऊं तो इट्स अबाउट 3 मिलियन रुपीज़। ये 3 मिलियन की अमाउंट है जो एक दोस्त जो है वो हमें दे चुके हैं, जिसको इंशाल्लाह हम परसों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं खुद जाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। डॉक्टर अमजद साकिब, फाउंडर ऑफ अखुवत पाकिस्तान, सर थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। दीगर जो हमारे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने डोनेट किया, जो यहाँ बैठे हैं, मेरे वाले साहब अमान साहब, जहांगीर अनवर साहब, अंकल थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सईद इस्माइल साहब, चेयरमैन हैंड्स, थैंक यू वेरी मच। दीगर डॉक्टर आबिद शेख साहब बैठे हुए हैं, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। टोटल जी मैंने कर लिया है। टोटल जो हमारा है आज की प्लेजेस का वो है 6 करोड़ 16 लाख रुपये। वाह, पुरजोर तालियां होनी चाहिए आप सबकी। और डॉक्टर साहब के कदम। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें डॉक्टर साहब का करोड़ रुपए हमने शामिल नहीं किया। अगर डॉक्टर साहब का हम करोड़ रुपए शामिल कर लें तो ये 7 करोड़ 16 लाख रुपए हो गए। और अगर अखुवत के करोड़ रुपए शामिल कर लें तो 7 करोड़ 16 लाख रुपए हो गए। अगर डॉक्टर साहब इसको मैच कर दें और डॉक्टर साहब की मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूँगा, तो
بیسیکلی ساحل ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے جس میں دانش امان بہت ہی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی نیوی اس کو ہیڈ کرتی ہے اور یہ بنائی گئی جو ہے وہ ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب نے بنائی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ جو کوسٹل بیلٹ ہے 1000 سے زیادہ کلومیٹر کی، وہاں کے جو فشرمین لوگ ہیں، جو آبادیاں ہیں، ان کے پاس سوائے مچھلی پکڑنے کے کوئی اور ہنر نہیں ہے۔ دوسرا 4-5 مہینے جب یہ مچھلی پکڑنا بند ہوتا ہے تو وہ لوگ سٹارویشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایجوکیشن، پانی تو بہت ہے سمندر کا، لیکن پینے کا پانی نہیں ہے، اور ہیلتھ تو ہے ہی نہیں، تو بہت بڑے ڈیزاسٹرز تھے۔ تو نیوی اس میں شامل ہوئی، اور ساحل ویلفیئر ایسوسیشن ان علاقوں کے اندر ہیلتھ جو ہے، ایجوکیشن، اسکل ڈیولپمنٹ، ووکیشنل ٹریننگ، IT ٹریننگ اور بہت ساری چیزیں اب کر رہی ہے مل کے، کیمپس لگا رہی ہے، راشن ڈسٹریبیوشن، کھانے کی تکلیف کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ کوئی چیز اگتی بھی نہیں ہے، ایگریکلچر بھی نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ بنا کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ایک کام ہو رہا ہے۔ اور اب بلوچستان کی جو قوم ہے، خاص طور پہ کوسٹل بیلٹ، وہ بہت ہی زیادہ اب قومی دائرے میں شامل ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ اتنے سارے ممالک کا غلط انفلوئنس بھی ہے بلوچستان کے اوپر، تو یہ ساحل ویلفیئر بہت ہی اشد ہے۔ اور آج کا جو ایونٹ تھا اس کی فنڈ ریزنگ تھی کہ مل کے کر سکیں، تو صرف پیسے جمع کر کے ان کی مدد کرنا نہیں ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ دوسرے پاکستانیوں کے بارے میں، اور نہ صرف کہ لوگ پیسے دے رہے ہیں بلکہ وہ اپنی ساتھ اب جا کے والنٹیئر بھی کر رہے ہیں اور محبتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ دانش امان پچھلے کئی سالوں سے ہر اس ادارے کو جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے، مفلس لوگوں کے لیے، کہیں پر بھی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ان سب کو جوڑتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سارے شہر کے لوگوں کو اکٹھا جمع کر کے ان سب اداروں کے بارے میں بتاتے ہیں، اس سے اویئرنیس بھی بڑھتی ہے، ان اداروں میں لوگ اپنی زکوٰۃ، چیریٹی، ڈونیشن بھی دیتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنا بھی ادارہ بنا لیا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میری دعا ہے دانش کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب ترقی عطا کرے، ان کی فیملی، ان کے بچوں کو، خاندان کو خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ساحل ویلفیئر ایسوسیشن جو ہے اس کا ایک فنڈ ریزنگ تھا، اور میں بڑا متاثر ہوا ہوں۔ میں پہلے بھی جانتا ہوں، لیکن کوسٹل جو ریجن ہے، 1000 میل لمبا ساحل ہے پاکستان کا، سندھ میں اور بلوچستان میں پھیلا ہوا، تو وہاں پر جو غربت ہے اور افلاس ہے، محرومی، اس کو دور کرنے کے لیے بے پناہ کاوش کی گئی ہے۔ اسکول بنا رہے ہیں یہ لوگ، ہسپتال بنا رہے ہیں، ڈسپنسریز بنا رہے ہیں، روزگار کا بندوبست ہو رہا ہے، گھر بن رہے ہیں، اور تو یہ ساری کی ساری چیزیں پھر کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے، جو اہل خیر ہیں، جو بڑا دل رکھتے ہیں، جن کے پاس اللہ نے زیادہ وسائل دیے ہیں۔ تو میں جناب فیصل امین صاحب جو چیئرمین ہیں ساحل کے، اور ریئر ایڈمرل وہ کوسٹ کمانڈر بھی ہیں، انہوں نے ایک بہت خوبصورت یہ انیشیٹو لیا ہے، اور دانش امان صاحب نے یہ جو سارا آرگنائز کیا، ان کے دوستوں نے، ڈائریکٹرز نے، تو یہ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ ایک کمیونٹی کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے ان لوگوں کو اپنے گلے لگا رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو بہت بہت یہ مبارکباد کا اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا لمحہ ہے۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔